Hello, good morning, children. Welcome back to your English class. And today we will study chapter 7 in your English literature books, A Dinosaur on the Railway Tracks. Children, open page number 102 in your English literature books, and then I will start with the reading and after that, explanation. So, let's begin with our chapter. Dinosaurs were huge creatures that lived and roamed on the earth in the ancient past. Paleontologists now have evidence that dinosaurs lived in different parts of the world. Fossils of these monstrous creatures have been found at many parts of the world. Fossils of these at many places, and their bones are also on display in various museums. Many many evolutionists believe that they lived about 140 million years ago and died around 65 million years ago. This was many million of years before the first modern humans appeared on the earth. It is believed that the dinosaurs died due to climatic and geological changes. Some believe that they died due to a meteor, asteroid, or comet that must have struck our planet. Now let us read the story about a dinosaur family that survived for millions of years and many strange things that occurred when they met humans. चिल्ड्रन, डायनासोर्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े दे वर द ह्यूज क्रिएचर्स जो कि थे बहुत पहले एंशियंट टाइम्स में, और पैलेंटोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं, उनके पास ऐसा एविडेंस भी है कि डायनासोर्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते थे बिकॉज फॉसिल्स ऑफ दीज मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स हैव बीन फाउंड एट मैनी प्लेसेस. इनके जो लेफ्ट आउट हैं, जो इनकी बॉडी के स्केलेटन्स वगैरह हैं, वो कई जगहों से मिले हैं एंड दे आर ऑल्सो ऑन डिस्प्ले इन वेरियस म्यूजियम्स. और जो इनके फॉसिल्स हैं उन्हें अलग अलग म्यूजियम्स में डिस्प्ले पर भी रखा गया है. मैनी एवोल्यूशनिस्ट बिलीव दैट 140 million years ago lived and died around 65 million years ago. 140 million years पहले ये रहते थे एंड इनकी डेथ जो है वो 65 million years पहले हुई है. This was many millions of years before the first modern humans appeared on the earth. और ये बहुत पहले की बात है, मिलियंस ईयर्स पहले की बात है जब मॉडर्न ह्यूमंस पहली बार अर्थ पर अपीयर हुए. और ऐसा माना जाता है कि डायनासोर्स जो हैं वो क्लाइमेटिक और जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, मर गए. और कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं डायनासोर्स मीटियोर, एस्टेरॉयड या फिर एक कॉमेट के हमारे प्लैनेट पर आ गिरने की वजह से डायनासोर्स जो थे वो सब ख़त्म हो गए थे. नाउ लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट के स्टोरी में यहाँ क्या दे रखा है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ डायनासोर फैमिली जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जिन्होंने सरवाइव किया है एंड बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेंज चीज़ें हुई जब वो लोग इंसानों से मिले, जब डायनासोर्स इंसानों से मिले. दिस इज़ अ fictional story, means this is, we can't say this is not a real story, this is not a real story, this story is based on the imagination of the author. So let's start. Long ago there lived a dinosaur family in a huge cave deep down in the realms of the earth. They moved around, played and ate plants whenever they came out of the cave into the open. There were many other dinosaurs too who lived in that place called Big Forest. None of them ever crossed the big mountain that was at the eastern edge of the forest. बहुत टाइम पहले की बात है, एक डायनासोर फैमिली रहती थी एक बड़ी सी गुफा में. रियलम्स मीन्स बायोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द अर्थ्स सरफेस. एक गुफा में रहते थे और वो वहाँ पर ही खेलते थे, पेड़ों को खाते थे. कभी भी वो माउंटेन जो दे रखा था दूसरे साइड पर उसे क्रॉस नहीं करते थे. जो केव के बाहर उनका खुला एरिया था, दे यूज टू प्ले देयर ओनली. और भी बहुत सारे डायनासोर्स थे जो उस जगह पर रहते थे विच इज़ कॉल्ड द बिग फॉरेस्ट. लेकिन वो कभी भी बिग माउंटेन को क्रॉस नहीं करते थे जो कि ईस्टर्न बाउंड्री पर था फॉरेस्ट के.
Thus life was peaceful and they all lived together happily. Then little Roxy and his parents went off to sleep for a very long time. Deep down in the cave they lay asleep for millions of years. इसीलिए उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून से थी, बहुत पीसफुल थी, क्योंकि वो सारे लोग एक साथ खुशी खुशी रहते थे. तभी लिटिल रॉक्सी और उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक गुफा में जाते हैं सोने के लिए और कई 100 साल तक सो जाते हैं. One morning, Roxy woke up with a big yawn and stretched his legs. His parents were still snoring. Suddenly he sneezed and then the parents woke up with a start. Mama Dinosaur said, "Oh, what was that?" "I sneezed, Mom." Papa Dinosaur smiled. "That's all right." फिर एक सुबह रॉक्सी उठता है. यॉन करना मीन्स जब हम सोने के लिए वी ओपन आवर माउथ एंड देन वी यॉन. वो यॉन करता है और अपने लेग्स को स्ट्रेच करता है, खोलता है. एंड आफ्टर दैट वो देखता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो अभी भी सो रहे हैं. दे आर स्टिल स्लीपिंग. तभी वो स्नीज करता है, चीखता है एंड उसके पेरेंट्स भी उठ जाते हैं. और मामा डायनासोर पूछती हैं ये क्या था. तभी रॉक्सी कहता है कि मैंने स्नीज किया मॉम. पापा डायनासोर स्माइल करते हैं, कहते हैं दैट्स ओके. I get a feeling that we slept for a long time. Let's go out and stretch ourselves. और फिर पापा डायनासोर कहते हैं कि हम बहुत टाइम से सो रहे थे, बहुत लंबा टाइम हम सो गए हैं, चलो बाहर चलते हैं एंड थोड़ा रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं. Sure, said Mama Dinosaur. They walked up to the tunnel that led to big forest. They stepped out and looked around. They were in for a big surprise. वो बाहर की तरफ जाते हैं टनल की, जो कि बिग फॉरेस्ट में खुलता है. जब वो बाहर जाते हैं और अपने चारों ओर देखते हैं, दे लुक्ड अराउंड, दे गॉट सरप्राइज. वो बहुत हैरान हो जाते हैं देखकर. Where have all the trees gone? There are fewer trees here, said Papa Dinosaur. तभी पापा डायनासोर कहते हैं कि सारे पेड़ कहाँ चले गए, यहाँ पर तो अब बहुत कम पेड़ रह गए हैं. Well, I think they got burnt in a forest fire, said Mama Dinosaur, sounding worried. तभी मामा डायनासोर कहती है मुझे ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी हो और इस वजह से सारे पेड़ यहाँ पर जल गए हैं. What about my friends? I cannot see any of them. Where are they? Roxy asked with a surprised look on his face. तभी रॉक्सी कहता है मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं, मैं किसी को भी यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, वो सब कहाँ हैं. और उसके फेस पर एक सरप्राइज, बहुत हैरानी वाला लुक था कि ये सब क्या हुआ है. So many changes, Papa Dinosaur remarked. They sat down with a worried look. Something strange and disastrous must have happened. The small lake that was just some distance away has also almost dried up. So many changes around, but strangely we are the same. Roxy is just the same as well, he said. तभी पापा डायनासोर कहते हैं कि इतना सब कुछ बदल गया. और वो तीनों वहाँ पर चिंता के साथ बैठ जाते हैं. दे सेट डाउन विद अ वरिड लुक. और सोचते हैं कि यहाँ पर एक बहुत कुछ अनयूजुअल हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इतनी सारी तबाही हो चुकी है. यहाँ पर जो एक छोटी सी लेक थी थोड़ी दूरी पर, वो भी बिल्कुल सूख चुकी है और इतना सब कुछ चेंज हो गया है. लेकिन स्ट्रेंज, ये बहुत स्ट्रेंज है कि हम तीनों सेम हैं. वी ऑल आर सेम, वी हैवंट चेंज्ड अ बिट. What had happened? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है. Let us go and check out things, Mom said Roxy. तभी रॉक्सी अपनी मदर से कहता है हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हुआ है, चेकआउट करना चाहिए चीज़ों को. We will do that tomorrow. Let's eat first. तभी मामा रिप्लाई करती हैं कि ये हम कल सुबह करेंगे, पहले हम कुछ खा लेते हैं. So they pulled some plants out of the damp soil and broke some tender branches of the tree. They ate the juicy and green leaves before Mama Dinosaur and Papa Dinosaur decided to go back to the cave. तभी वो कुछ छोटे प्लांट से कुछ पत्तियाँ तोड़ते हैं, उसकी ब्रांचेस तोड़ते हैं. टेंडर मीन्स सॉफ्ट ब्रांचेस जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं, एंड वो खा लेते हैं. बिफोर मामा डायनासोर एंड पापा डायनासोर डिसाइडेड टू गो बैक टू द केव. रॉक्सी रिफ्यूज टू गो बैक एंड सेड इन अ प्लीडिंग वॉइस, मॉम लेट मी प्ले हेयर फॉर अ वाइल. तभी रॉक्सी कहता है कि मुझे वापस नहीं जाना, प्लीज़ मुझे यहाँ थोड़ी देर खेलने दीजिए. हिज पेरेंट्स सेड ओके बट डू नॉट स्ट्रे अवे, बी क्लोज टू दिस टनल एंड come back after some time.
तभी उसके फादर कहते हैं, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि यहाँ से कहीं बाहर मतलब ज़्यादा दूर नहीं चले जाना। स्ट्रे मीन्स मूव अवे एमलेसली फ्रॉम द राइट कोर्स, सही जगह से बिना किसी एम के दूर चले जाने को स्ट्रे अवे कहते हैं। इस टनल के पास ही रहना और कुछ टाइम बाद फिर वापस आ जाना। श्योर आई विल प्ले हेयर जस्ट फॉर सम टाइम, तभी रॉक्सी कहता है कि बस मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर खेलूँगा। एज सून एज दे वर गॉन रॉक्सी जम्प्ड अप टू टेक अ लुक बियॉन्ड द लेक। ही सॉ समथिंग लाइक अ वाइट क्लाउड गो अप इन द एयर। ही वॉज क्यूरियस एंड wanted to find out more. Roxy ran towards the lake and then around it till he reached close to a mountain. Up the slope of the mountain he went and rolled down the other side. जैसे ही रॉक्सी के पेरेंट्स अंदर जाते हैं, रॉक्सी कूद कर ऊपर आता है उस झील को देखने के लिए। फिर वहाँ वो क्या देखता है कि एक सफ़ेद कुछ बादल सा ऊपर हवा में उड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस ईगर हो जाता है जानने के लिए कि ऊपर क्या है। तभी वो लेक की तरफ भागकर जाता है एंड देन अराउंड इट, फिर वो इस तरह से स्लोली माउंटेन तक पहुंच जाता है, उस पहाड़ तक पहुंच जाता है और फिर वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है एंड जब वो ऊपर चढ़ जाता है ऊंचाई से, ही रोल डाउन द अदर साइड, वो रोल होता हुआ बाय मिस्टेक माउंटेन की दूसरी साइड से नीचे आकर गिर जाता है। ओह इट्स ग्रेट फन, ही एक्सक्लेम्ड, तभी वो कहता है इसमें तो बहुत मज़ा है, इट इज़ फन। Then he landed next to the railway tracks and saw something big coming towards him. Roxy was excited. He sat down on the tracks to get a closer look. As he strained his neck and focused on the moving creature, it stopped very close to him. तभी वो जब माउंटेन की दूसरी साइड से नीचे रोल डाउन होकर चला जाता है, वो एक रेलवे ट्रैक पर आकर गिरता है एंड वो देखता है कि उसकी तरफ कुछ एक बहुत बड़ा सा मूव करता हुआ आ रहा है। वो बहुत एक्साइटेड होता है ये जानने के लिए कि वो क्या चीज़ है जो उसकी तरफ मूव करती हुई आ रही है। टू हैव अ क्लोज़र लुक, वो वहाँ पर एक्साइटेडली बैठा रहता है और वो जैसे ही अपनी नेक को ठीक करता है, स्ट्रेन करता है और उस मूविंग क्रिएचर जो उसकी तरफ मूव कर रहा है उसे देखता है, फोकस करता है, वो उसके बहुत पास आकर रुक जाती है। All the passengers and the engine driver got down. Some shrieked with fright, "Look, a dinosaur!" Few of them began to shout for help, whereas some just stood and watched Roxy with wide open eyes. An old lady remarked, "Look at that! What has this world come to? A dinosaur is here. I'm sure it has come here in a satellite to destroy our वर्ल्ड। फिर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उस ट्रेन के और ड्राइवर भी सब डर की वजह से बाहर आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, देखो एक डायनासोर, और कुछ तो है वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। वेयरएस कुछ जो है वो रॉक्सी को वहाँ खड़े होकर बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं और एक ओल्ड लेडी रिमार्क करती हैं कि देखो दुनिया कहाँ आ गई है, वी आर सीइंग अ डायनासोर हेयर। अ डायनासोर, यहाँ पर एक डायनासोर आ जाता है और मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ किसी सैटेलाइट में आया है हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी प्लेस्ड इन एन ऑर्बिट अराउंड Earth or another planet in order to collect information or for communication. Soon there was a great excitement all around, but Roxy sat there calmly. He was enjoying all the attention. सब जगह रॉक्सी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया था, लेकिन रॉक्सी वहाँ आराम से अनडिस्टर्ब एंड नॉट एक्साइटेड एट ऑल बैठा हुआ था एंड उसे बहुत मज़ा आ रहा था वो सारी अटेंशन गेन करके। The engine driver gathered all his courage and blew a whistle. Waving a red flag, he signaled Roxy to move away, but he did not budge. A group of ladies thought that if they sang a song, the dinosaur would happily go away. तभी जो इंजन ड्राइवर होता है वो पूरी अपनी करेज, पूरी अपनी हिम्मत लगाकर एक विसल बजाता है और रेड फ्लैग को वेव करके रॉक्सी को बोलता है कि वो वहाँ से हट जाए, लेकिन ही डिड नॉट बज मीन्स रॉक्सी वहाँ से
हिलता नहीं है, ही डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर। तभी एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ जो हैं वो सोचती हैं कि अगर वो गाना गाएंगी तो डायनासोर वहाँ से खुशी खुशी चला जाएगा। सो दिस sang a sweet song, but Roxy did not change his mind. Within 24 hours, a group of journalists and cameramen came along, and pictures of Roxy flashed across TV screens. फिर वो ग्रुप ऑफ लेडीज़ एक गाना गाती हैं, बट रॉक्सी फिर भी वहाँ से नहीं हटता है। 24 घंटों में काफ़ी सारे जर्नलिस्ट कैमरामैन्स आ जाते हैं वहाँ पर रॉक्सी की पिक्चर्स लेने के लिए, और कुछ ही देर में रॉक्सी टीवी स्क्रीन पर होता है। नो वन हैड एवर सीन अ डायनासोर। द वर्ल्ड वॉज अबल्स विद दिस न्यूज़। देन मैनी फूड स्टॉल्स वर पुट up as people began to visit the place to catch a glimpse of the last of the dinosaurs. तभी वो किसी ने भी डायनासोर को नहीं देखा होता है, एंड सारे लोग जो है उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स लग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं डायनासोर को देखने के लिए। द वर्ड इज स्प्रेड अराउंड दैट द डायनासोर वॉज अ हार्मलेस वन। और ये बात भी फैल जाती है सब जगह कि जो डायनासोर है वो हार्मलेस है, मतलब वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। अ बिग आइसक्रीम ट्रक स्टूड ऑन वन साइड एंड चिल्ड्रन फ्लॉग्ड नियर इट। और एक बहुत बड़ा आइसक्रीम ट्रक जो है वो एक साइड पर खड़ा होता है और बच्चों ने उसके चारों ओर भीड़ लगाई होती है। When Roxy's eyes fell on the ice cream cones, he got up and reached out for a cone that a little girl was holding. जब रॉक्सी उस आइसक्रीम कोन को देखता है तो फिर वो वहाँ से उठकर आइसक्रीम ट्रक के पास चला जाता है। वहाँ पर एक लड़की, छोटी लड़की जो कि आइसक्रीम कोन को पकड़े हुए है। द गर्ल वॉज स्टार्टल बट सून गेव इट टू रॉक्सी एंड स्माइल। स्टार्टल मीन्स फ्राइटेंड। पहले तो वो लड़की डर जाती है लेकिन फिर अपना आइसक्रीम कोन रॉक्सी को दे देती है एंड स्माइल करती है। रॉक्सी लाइक द आइसक्रीम एंड गल्प इट डाउन। रॉक्सी को आइसक्रीम पसंद आती है इसीलिए वो आइसक्रीम खा जाता है। गल्प मीन्स एट ग्रीडली, बहुत जल्दी जल्दी खाना। इन ग्रीड ही सिंपली लव्ड द टेस्ट। इट टेस्टेड सो मच बेटर दैन द लीव्स। उसे आइसक्रीम का टेस्ट बहुत पसंद आता है क्योंकि वो पत्तियों से ज़्यादा टेस्टी थी, क्योंकि ही यूज़ टू ईट द लीव्स ऑफ ट्रीज ओनली। कुछ भी वो लोग नहीं खाते थे, सिर्फ पेड़ों की पत्तियां खाते थे। एंड ऑब्वियसली जब उसने यहाँ पर आइसक्रीम खाई है तो उसे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतर लगा है। ही आस्क्ड फॉर वन मोर एंड द आइसक्रीम सेलर वॉज ओनली टू हैप्पी टू ऑब्लाइज। फिर वो आइसक्रीम सेलर से एक और आइसक्रीम मांगता है और आइसक्रीम सेलर बहुत खुश होता है एंड उसको एक और आइसक्रीम दे देता है। आफ्टर ऑल हिज पिक्चर वॉज ऑल्सो फ्लैश्ड ऑन द TV स्क्रीन्स। ऑल दिस वेंट ऑन फॉर 2 days. द ट्रेन वॉज स्टेशन देयर, द पैसेंजर्स वर देयर। और सारी जितनी भी ये पिक्चर्स हैं ये सब TV स्क्रीन्स पर फैल जाती हैं और ये सब कुछ 2 दिन तक चलता रहता है। ट्रेन वहाँ पर खड़ी रहती है, पैसेंजर्स भी वहाँ पर ही रुक जाते हैं, बट नोबडी सीम्ड टू माइंड। लेकिन किसी को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी डायनासोर की वजह से। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन, बट जस्ट एज 2 days passed, मामा डायनासोर एंड पापा डायनासोर केम अराउंड लुकिंग फॉर रॉक्सी। रॉक्सी, what are you doing here? Come along, said his mother. Why did you cross the mountain? shouted पापा डायनासोर। लेकिन इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर एवरी वन। जब 2 दिन गुजर जाते हैं तो रॉक्सी के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और रॉक्सी से कहते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। रॉक्सी स्माइल, लुक मॉम एंड डैड। रॉक्सी स्माइल करके कहता है मॉम एंड डैड लुक देयर। I am having great fun here. I have so many new friends. Come and join everyone. मॉम एंड डैड यहाँ देखिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत फ़न कर रहा हूँ, मैंने कितने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, आप लोग भी आइए और सबको ज्वाइन करिए। पीपल वर अमेज टू सी रॉक्सीज पेरेंट्स। और लोग जो हैं वो बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं रॉक्सी के पेरेंट्स को देखकर। दे वर मच बिगर दैन रॉक्सी। वो रॉक्सी से भी ज़्यादा बड़े थे इन साइज़। बट सून आफ्टर ईटिंग मोर आइसक्रीम रॉक्सी वेब्ड एट एवरी वन एंड
went back to the cave. Roxy and his parents went back to sleep again. लेकिन आइसक्रीम कोन फिनिश करने के बाद रॉक्सी सब लोग को बाय बोलता है और वापस अपने गुफा में चला जाता है और उसके पेरेंट्स दोबारा से सोने चले जाते हैं. Probably they would wake up after many years again. Nobody saw them again. और ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी साल बाद दोबारा फिर से उठेंगे क्योंकि उन्होंने उसके बाद किसी ने वहाँ पर डायनासोर्स नहीं देखे क्योंकि वो दोबारा से सोने चले गए थे. So children, this is all about the story. I hope all of you have enjoyed the story.